Good morning, students. We are here just to study the same chapter, that is human systems. Under this system, we have seen there are lot many systems in our body that functions, and because of that, we are alive. Okay. In that systems, we have seen digestive system, respiratory system, then circulatory system, reproductive system, excretory system, nervous system. We are studying here in detail, that is digestive system. And in that digestive system, earlier we have discussed about the alimentary canal, which starts from mouth up to the anus. Okay, and so many parts come under that alimentary canal. Then there is glands in the digestive system. Which are those glands? Salivary gland, liver, pancreas. Then there are organs of the digestive system. So which are those organs? Mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and rectum. We have already studied about mouth, pharynx, esophagus in our last videos. Now we will study about the stomach. So what is stomach? What is the structure of stomach and what is the function of stomach? We will see. Also the parts of stomach. Stomach is J-shaped. J-shaped means like J. It is like J-shape. Hollow means जो अंदर से खाली होता है, that is hollow. And widest part of alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल का वो सबसे वाइडेस्ट है. वाइडेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चौड़ा है. अगर हम माउथ को देखेंगे तो वो भी स्टमक से ज़्यादा वाइड नहीं है. देन इसोफेगस जो फूड पाइप है वो भी उससे ज़्यादा वाइड नहीं है. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सभी स्टमक से छोटे हैं. तो एलिमेंट्री के पार्ट्स कौन से हैं? विच आर दोज? माउथ, esophagus यानी food pipe, then that is stomach, small intestine, large intestine, and rectum. So stomach is J-shaped, hollow and widest part of alimentary canal. Stomach lies between esophagus and duodenum. Lies between means इनके बीच में स्थित है. किसके बीच में? esophagus and duodenum के बीच. एसोफेगस मीन्स फूड पाइप. फूड पाइप जो है हमारे माउथ से आती है, ये जो है ये फूड पाइप है. ये जो है फूड पाइप के एंड पे अटैच है क्या? आवर स्टमक. एंड उसकी स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट आता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं. ये जो पार्ट है इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं. सो स्टमक लाइज बिटवीन esophagus and duodenum of the small intestine, and it is located in the left side of abdominal cavity. जो हमारा पेट है, इसका जो स्ट्रक्चर उसमें स्टमक जो है लेफ्ट साइड में है. किस तरफ है? सपोज हम ऐसे खड़े होते हैं तो लेफ्ट साइड में है हमारा जो स्टमक है वो. ओके. इट होल्ड 1 to 3 liters of food. इसके अंदर एट ए टाइम हम जो होल्ड करके रख सकते हैं कितना लीटर? 1 से लेके 3 लीटर्स तक फूड उसमें स्टोर हो सकता है. देन पार्ट्स ऑफ स्टमक. स्टमक के जो हैं कुछ पार्ट्स हैं. व्हाट आर दोस? कार्डियक, पाइलोरस एंड फंडस. सो कार्डियक, पाइलोरस एंड फंडस. If we will see the diagram of this stomach, we will see the cardiac is on the top of that top part of that stomach. Then fundus is the middle part. This middle part, we can say this middle part is the fundus, and the pylorus is the end part of the lower part of stomach, that is pylorus. So there are 3 parts which are cardiac, pylorus and fundus. Cardiac, fundus and pylorus. These are the 3 parts of stomach. Now we will see what is cardiac. Cardiac, this part is at the left side. It is connected to the esophagus. ये जो है ये लेफ्ट साइड में है
किसके, स्टमक के, और कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, पाइलोरस, ये जो सॉरी कार्डियक इज कनेक्टेड विद इसोफेगस, ये कार्डियक है, ये इसोफेगस से कनेक्टेड है, एंड दिस पाइलोरस इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, इससे कनेक्टेड है पाइलोरस। ओके, सो वी विल सी फुंडस, फुंडस इज द अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक, स्टमक का जो अपर पोर्शन है वो मिडिल पोर्शन जिसको कहते हैं वो है, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम इज जो हमारा छाती है, चेस्ट है, उसके नीचे है। देन पाइलोरस, दिस पार्ट opens into small intestine, पाइलोरस, this part opens into small intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर ओपन होता है, इस पार्ट को पाइलोरस कहते हैं। Now most important है कि we will see that when we eat the food, that food doesn't come out from our mouth back, अगर हमें उल्टा भी लटका दिया जाए तो जो फूड है वो वापस नहीं आता है हमारे माउथ से, स्टमक में जाने के बाद वापस नहीं निकलता है, तो वो ऐसा क्यों, क्या होता है कि वो वापस नहीं आता है? So there is sphincter muscles है, sphincter muscles है, sphincter muscle क्या होते हैं? Stomach has two muscular sphincter to control the movement of food, ये जो sphincter muscles है, मांसपेशियां हैं sphincter की, इनसे क्या होता है, वो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, हमारे फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। So sphincter muscles are two types, cardiac sphincter एंड पाइलोरिक स्पिंस्टर, दो हैं। ये जो कार्डियक है, यहाँ पर स्पिंस्टर मसल होती है, इसलिए इसका नाम भी कार्डियक स्पिंस्टर्स रखा गया है, एंड यहाँ पर भी लोअर साइड में भी क्या है, स्पिंस्टर मसल्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पाइलोरस स्पिंस्टर मसल्स, इसलिए नाम भी इसके साथ में दिया, जो पार्ट का नाम है वही नाम से स्पिंस्टर मसल्स का नाम दिया गया है। So cardiac sphincter, it separates esophagus from stomach, esophagus को stomach से separate रखता है, वो अलग रखता है, कौन, sphincter muscle. So it prevents acidic food from going back into esophagus. स्टमक में खाने आने के बाद में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके जो वॉल्स हैं, स्टमक के जो वॉल्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl छोड़ता है, उसका जो फंक्शन है बाद में देखेंगे हम। तो ये एसिडिक हो जाता है, फूड बिकम्स एसिडिक, एंड दिस फूड विल नॉट गो बैक इनटू द इसोफेगस, व्हाई, बिकॉज ऑफ स्पिंस्टर मसल्स, स्पिंस्टर मसल्स बंद कर लेते हैं, थोड़े क्लोज हो जाते हैं, और वो उसको वापस खाने को ऊपर जाने नहीं देते, यहाँ पर एकदम नैरो कर देते हैं उसको। नाउ सी पाइलोरिक स्पिंस्टर क्या करते हैं, दिस स्पिंस्टर सेपरेट्स स्टमक फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पाइलोरिक जो स्पिंस्टर है वो सेपरेट करते हैं किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिससे कि क्या होता है, जो खाना है वो जल्दी सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, 2 से 3 घंटा वो जो खाना है वो हमारे स्टमक में ही रहता है, उसको रोकेगा कौन, तो उसको रोकते हैं ये पाइलोरिक स्पिंस्टर मसल्स, उसको रोकते हैं। ओके, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए कंट्रोल करता है फूड को, विच मसल्स, पाइलोरिक sphincter muscles. Okay, now we will see the function of stomach. Stomach stores the food. First function is stomach stores the food. Food को store करता है. Then stomach digestion of protein starts here. Stomach के अंदर ही जो food digestion होता है उसमें protein भी उसी में digest होता है. The hydrochloric acid provide acidic medium and kills bacteria present in the food. अब जो मैंने बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोवाइड होता है, जो कि फूड में जो बैक्टीरियाज आते हैं हमारे माउथ में, जैसे हम सपोज आप फूड खाते हैं या तो
रात का बना हुआ खाना अगर हम खाते हैं या फिर कच्चा आम खाया आपने, केला खाया, उसके साथ कुछ बैक्टीरियाज अंदर जाते हैं। अब वो जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पर्पस होता है वो खाने के अंदर जो बैक्टीरियाज आए हैं, एंटर किए हैं, उनको किल करते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टमक। Now you have to do the question and answers of this topic. What is the first question? Draw the diagram of stomach and explain it. You have to draw the diagram of this stomach and you have to explain up to this pylorus. Up to this pylorus you have to do the answer of it. Then question number 2. What is sphincter muscle and explain two types of sphincter. स्पिंस्टर मसल्स क्या होते हैं एंड उसके टू टाइप्स को एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, देन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टमक? दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइट ऑल दिस notes in your notebook and learn them, and you have to upload this homework in your diary option in submit assignment. Okay.